और जब मैंने उस वीडियो पे कमेंट किया तो आई एम शॉक्ड टू सी कि ब्रूट इंडिया ने मेरा कमेंट ही डिलीट कर दिया. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो माय नेम इज कौशिकी एंड आई हैव कंप्लीटेड माय graduation in journalism and mass communication from D.Y. Patil International University, Pune. And why I'm mentioning this, because in this video I'm gonna talk about something which holds and which highlights the value of the degree of the media. एंड क्लिप मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी ब्रूट इंडिया के थ्रू, जो कि एक बहुत नोन रिनाउंड मीडिया कंपनी है हमारे इंडिया में, और उसके थ्रू ये वीडियो अभी यूट्यूब पे पोस्ट किया गया है. I just want to clear out the thing, and please look at the full video first. I would like you to watch the video first and then we'll talk about the part. Me now, I am my shift. Oh, don't touch me. Okay, good. So don't touch me. Stay away. I'm asking him. When Indians are trying to come in, you are telling them that we are full. Yeah. But when the foreigners are trying, He is pointing at a board which is saying that we are prioritizing foreigners, and he is proud of that they are prioritizing foreigners. Let's discuss. First read Ask this. me. I'm talking with you. Ask me. So Ask me now. I am my shift. Oh, don't touch me. Okay, good. So don't touch me. Stay away. I'm asking him. No. Now my shift. So okay, you can speak with me. Okay, I'm Let's speaking go. with you. Come. I'm speaking here. I'm not going there. I'm speaking here. No. So is it a fair thing that you are organizing this in India and not allowing Indians to go inside? No, it's not true. Actually, our festival for everyone. Huh. But we're giving priority in evening time to foreigner visitors because this festival was organized for welcoming and explain Indian culture with those who don't have connection with Indian culture. So our festival is open for everyone. But why you are doing this in India then? Why you don't do it in Europe? All the foreigners are there only. Here, why to come here and organize this and say this thing, we are organizing this for foreigners? Sure. Do it in Europe. All the foreigners are only there. Of course. Yes. So many foreigners who already interested with this culture, you know. We just want to connect them with taste of bhakti, taste of kirtan. Okay, so you don't want to connect Indians. You like doing it in India, saying this thing, we want to connect foreigners. not Indians. You already make... You stop Indians, okay, you can't go, we are full, and then you ask foreigners to go walk by. Isn't it insulting? No, I'm just- it's not totally no, insulting. totally no. If it's happening, chance. happening in your country, We giving they stop you and allow people from I other want to countries. discuss Isn't it it more. insulting? You don't give It's- me it's- to talk. Excuse me, I don't want to talk anymore. All of your voice, support and comments made the organizers of that kirtan reach out to us. They talked us, they showed a positive attitude. They said we are sorry for what happened and we will really try to change it and make sure that this discrimination on the gates of kirtan where people are coming to dance in the name of Krishna will not happen. तो जिस भी इंसान ने वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको बता दूं कि ये एक ऋषिकेश में चल रहे कीर्तन फेस्टिवल का एक वीडियो है. एंड इस वीडियो का जो सोर्स है वो राहुल नाम का एक इंसान है, एक लड़का है जो कि एक योगा टीचर है. एंड ही गोज एंड मेक्स अ वीडियो अबाउट हाउ द पीपल, द डिवोटीज ओवर देयर आर रिस्पॉन्डिंग टू हिम, यू नो, when asked upon ki whether we are allowed to attend the kirtan concert or not, or whether foreigners are allowed and they are allowing them to pass in. इस वीडियो को जो है यूट्यूब पे पोस्ट किया गया है ब्रूट इंडिया के थ्रू, और मैंने रिसेंटली कल जब वहाँ पे विजिट किया और उनका जो ट्रीटमेंट था, जो उनका बिहेवियर था, इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड टुडे व्हेन आई वॉच दिस वीडियो विच इज़ गोइंग कॉन्स्टेंटली वायरल ऑन यूट्यूब, ऑन सोशल मीडिया, ऑन अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो मैंने जब उस वीडियो पे कमेंट किया तो ब्रूट इंडिया ने मेरा कमेंट डिलीट कर दिया. जब ये वीडियो शुरू हो रहा है तो यहाँ पे दो इंसान हैं, एक तो डेफिनेटली इंडियन है और एक फॉरेनर प्रभु जी हैं. और जो फॉरेनर यहाँ पे इस वीडियो में दिखाए गए, उसमें उन्होंने फर्स्ट वीडियो के जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है उसमें बोला है आस्क मी नाउ आई एम माई शिफ्ट, ऐसा करके कुछ तो भी स्टेटमेंट दिया है. और जो इंडियन गाय है, ही इज सेइंग, यू नो, डोंट टच मी, आई एम टॉकिंग टू हिम, सॉर्ट ऑफ थिंग, है ना. Me now, I am my shift. Oh, don't touch me. Okay, good. So don't touch me. Stay away. I'm asking him. और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ, मेरी ये ना बहुत बेसिक सी कॉमन चीज़ होती है कि हमें पहले ऐसा कुछ वीडियो में डालना चाहिए, कोई हुक जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस रुके. तो पहले ही वीडियो में ना ऐसी
रेजियस थिंग उसमें दिखाई गई है, जिसकी वजह से देख के ही मतलब ऐसे हो जाएगा इंसान कि क्या है ये क्या चल क्या रहा है, मतलब ये लड़ाई क्यों हो रही है। तो तिलक विलक लगा रखा है, इतना स्पिरिचुअल पर्सन है, एंड देन यहाँ पे लड़ाई चल रही है। व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली। देन जब ये वीडियो शुरू हो रहा है तो आप देखो जो वीडियो में ये इंडियन गाय एक ओल्ड पर्सन से जो कि ब्लैक कलर के आउटफिट में है, उनसे जब पूछता है कि व्हेन इंडियंस आर ट्राइंग टू कमिंग यू आर जस्ट डिनाइंग देम, एंड व्हेन फॉरेनर्स आर कमिंग सो यू लेट देम कम इन। When Indians are trying to come in, you are telling them that we are full. तो इस वीडियो में ना जब वो एक ऐसे हाथ करके एक बोर्ड को दिखा रहे हैं, वो पार्ट वहां पे पूरा नहीं बोलने दिया गया है। वो वहां पे एक उस इंसान की जिसने वीडियो बनाया है, जो इंडियन पर्सन है, उसका वॉइस ओवर वहां पे डला हुआ है। आप ध्यान से उस वीडियो को, उस वॉइस नोट को सुनिए जो कि वहां पे हाईलाइट हुआ है। But when the foreigners are trying, He is pointing at a board which is saying that we are prioritizing foreigners. And he is proud of that they are prioritizing foreigners. यहाँ पे जो क्लेम किया गया है स्टेटमेंट वॉइस ओवर में, वो सीधा सीधा ये बोला है दैट ही इज पॉइंटिंग टू द बोर्ड विच स्टेट्स दैट ओनली फॉरेनर्स और वी आर प्रायोरिटाइजिंग फॉरेनर्स, जबकि ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को जब ध्यान से देखेंगे तो वीडियो को पॉज करके उसका जो इसमें जो तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें वो रजिस्ट्रेशन का बोर्ड दिखाया गया है, उसमें प्रोसेस हाईलाइट हो रही है कि कैसे हम प्रोसेस को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। इस वीडियो में आप थोड़े ही आगे देखेंगे व्हेन द इंडियन गाय इज आस्किंग टू द फॉरेनर गाय कि is it a fair thing that you are allowing foreigners to come in and attend the program and not allowing the Indians? So the foreigner guy states, no, it's not a true thing, we are allowing everyone. इस वीडियो में फॉरेनर ने आगे बोला है कि हम सबको अलाउ कर रहे हैं, बट हम प्रायोरिटाइज फॉरेनर्स को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग जिन्हें इंडिया के बारे में नहीं पता है, जिन्हें भगवान क्या है, जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है, और जो लोग इसको लेके फैमिलियर नहीं है, उनको हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। दिस डज नॉट मीन दे आर डिनाइंग इंडियंस टू कम इन, बट दिस मीन्स दैट दे आर प्रायोरिटाइजिंग द पीपल हु आर नॉट फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। Actually, our festival for everyone. But we giving priority in evening time to foreigner visitors because this festival was organized for welcoming and explain Indian culture with those who don't have connection with Indian culture. And upon ask why you are not organizing this event in Europe and rather in India and then not allowing Indians, first of all, not allowing Indians is not the point at all. They are allowing everyone. but why you are doing this in India then? Why you don't do it in Europe? All the foreigners are there only. Here, why to come here and organize this and say this thing, we are organizing this for foreigners? Sure. Do it in Europe. All the foreigners are only there. Of course. Yes. So many foreigners who already interested with this culture, you know. We just want to connect them with taste of bhakti, taste of kirtan. Okay, so you don't want to connect Indians. You like doing it in India, saying this thing, we want to connect foreigners. You, not you, Indians. you already make Now look at this part. यहाँ पे एक क्लिप दिखाई जा रही है जहाँ पे फॉरेनर इज पॉइंटिंग आउट टू अ बोर्ड वेयर इट्स रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन इज गिवन। उस पार्ट को इस वीडियो में ब्लर किया गया है। एंट्री की इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को यहाँ पे ब्लर करके दिखाया जा रहा है। You stop Indians, okay, you can't go, we are full, and then you ask for. Guys trying to point out at the board which is not being rightly shown here, which is the information which is blurred here. Now I would like to explain this whole concept. तो ऋषिकेश कीर्तन फेस्ट एक प्रोग्राम है जो कि कई सालों से यहाँ पर चल रहा है और हिज होलीनेस इंद्रियोम्न स्वामी महाराज जो हैं उनके थ्रू ऑर्गेनाइज होता है। और ऋषिकेश में हर साल ये 1 महीने लगभग चलता है, फरवरी से मार्च के बीच में। और अभी रिसेंटली ये आई थिंक 22 फरवरी से 22 मार्च ऐसा कुछ तो भी है। और कल 12 मार्च को मेरा बर्थडे था और कल मैंने इस प्लेस को विजिट किया और मैंने इस जगह को सर्च किया गूगल पे। मैंने ऋषिकेश कीर्तन फेस्ट जो वेबसाइट है उसको देखा, वहाँ पे उनका मेन्यू, व्हाट्स ऑन, पूरा सारी चीज़ें वहाँ पर टूल्स में गिवन हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें शाम के सेशंस को, कीर्तन सेशंस को अटेंड करने के लिए
पासेस होते हैं, क्योंकि बहुत नोन या बहुत जाने माने जो कीर्तनियाज है वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, और इस वजह से वहां सुबह 8 बजे रजिस्ट्रेशन ओपन होता है और पासेस आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको मिलते हैं। और जब आप वहां से पासेस लेते हैं तो आपको शाम के कीर्तन के लिए एंट्री मिलती है, क्योंकि जो हॉल है जहां पर कीर्तन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, कंडक्ट किया जाता है कीर्तन सेशंस, वो काफ़ी छोटा है और उसमें अराउंड 200 पीपल की कैपेसिटी होगी और उससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, इसीलिए पासेस वाला सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। लेकिन जब ये चीज़ फॉरेनर प्रभुजी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द वीडियो, तो द पर्सन इज नॉट अलाउइंग हिम टू स्पीक, और उसकी वजह से वो गुस्सा होके वहां से चले जाते हैं, एंड ही सेज कि ओके आई जस्ट डोंट वांट टू। Totally no. If it's happening, we give in if it's chance. happening in your country, We give in. they stop you and allow people from I other don't want to countries. discuss Is it it more. insulting? You don't give It's- me it's- to talk. Excuse me, I don't want to talk anymore. आई एम शॉक्ड टू सी कि मैंने कुछ देर पहले इस वीडियो पे कमेंट किया है जो कि अब दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैंने पूरा कमेंट सेक्शन छान मारा है। वाई दोज कमेंट्स विच आर स्टेटिंग कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बजरंग दल को बुलाना चाहिए, और दिस इज ऑफ ब्रिटिश टुक ओवर, ये सारी चीजें यहाँ पे टॉप पे या न्यूएस्ट पे क्यों दिखाई दे रही है? मोस्ट ऑफ द नेगेटिव कमेंट्स आर हाईलाइटेड एंड द पॉजिटिव वंस आर नॉट इवन शोन हियर। हिज होलीनेस इंद्रियोमन स्वामी महाराज का जो था कल कीर्तन, फिर राधिका दास प्रभु जी का था, फिर उसके बाद माधव प्रभु जी का था। तो भाई उन स्लॉट्स को अगर डिवाइड किया गया है या उसके लिए एक प्रोसेस रखी गई है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो वो इसीलिए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए आपको एक प्रॉपर एनरोलमेंट प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ये बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपने बस वीडियो में देखा या जो आपको सुनाया गया है कि Indians are not allowed, foreigners are being prioritized, and this and that. Are you able to understand कि कैसे हमारी साइकोलॉजी, हमारा थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट होता है? We have to know the whole thing, guys. मतलब we cannot be influenced just with one point, and that too which is being highlighted by a video. This video is also created by someone. किसी ने क्रिएट किया है वो वीडियो, कुछ सोच के किया है कि इंडियन व्यूअर्स को क्या चीज इफेक्ट करेगी, ये सोच के वो वीडियो क्रिएट किया गया है। टीआरशिप हमारा वीडियो टॉप पे कैसे जाएगा, वायरल कैसे होगा? इस वीडियो के शुरुआत में जो इंसान है उनका नाम है राहुल, जो कि एक योगा टीचर है, और इस वीडियो के एंड में आप देखोगे कि जो पिक्चर है, इस फोटो में आप देख सकते हो, मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके डाला है जिसमें ये लास्ट में बताया गया है कि लोगों के कमेंट्स की वजह से, लोगों की वॉइस रेज करने की वजह से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है और ये क्लेम किया है कि दोबारा इस टाइप का बिहेवियर जो है नहीं रिपीट किया जाएगा। ऋषिकेश कीर्तन फेस्ट का जो है प्रॉपर वेबसाइट है, और उसको जाके आप वहाँ पे उनके डिटेल्स चेक करोगे तो वी गेट टू नो कि कैसे हमें पासेस अवेलेबल होते हैं, कैसे हम उनको अटेन कर सकते हैं। प्लीज़ आप पूरा इन्फॉर्मेशन को जानिए और उसके बाद किसी भी चीज़ को बिलीव कीजिए। ये 30 सेकेंड्स के वीडियोस को देख के, 40 सेकेंड्स के वीडियोस को देख के डू नॉट गेट influenced or affected, because this is a very normal thing for media to do this, क्योंकि हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे हमें लोगों के अटेंशन को कैच करना है और कैसे उस चीज़ को बना के रखना है, व्यूअरशिप को इंक्रीज करने के लिए। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गेट द फुल इंफॉर्मेशन एंड देन बिलीव एनीथिंग। एंड जय हिंद, जय भारत।